Okay, Tripta ji. Yes. Can you hear me or? Hello? Yes, we can hear you. Good evening and a warm welcome, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to introduce today's speaker or today's presenter, computer science professor and photographer and a very good friend of mine, Dr. Shushma Lahiri. She was the founder director of the Institute of Computer and Information Science at Agra University. She has published many research papers in international and national and international journals in the field of computer science. She believes in hard work, sincerity, and professional integrity. She had been assisting PhD students in writing thesis work at Agra University. So she has a great educational qualification, and post-retirement she developed few hobbies. She believes age is no bar. At any age you can learn whatever you feel like learning. So post-retirement she has settled in Navi Mumbai and pursuing her twin hobbies, that is travel and nature photography. She has widely traveled all over the world and nature photography is her passion. During pandemic, she has learned a new technique. She had been taking photographs of the landscapes and nature, but during pandemic, she has learned a new technique of photography that is known as droplet photography. With a drop, when it splashes, how the photographs are formed. It can be done in the comfort of your home, but it requires a lot of patience and one has to work for long hours to get good results, which you will be observing today. She has won many awards and latest she has won second prize of 5,000 rupees at Smart City Photography competition. She is so dedicated, keen, and I can say because I'm a friend, she's so crazy to take photographs that she can get up early morning and very early, 4 o'clock, 5 o'clock, to take sunrise photographs and to see the droplets of water on the leaves. And she can walk for miles and miles to capture nature. And once she walked for 3, 4, 5 miles to capture the photographs of an owl in the rocks. So she's so keen to take the beautiful photographs. And she has given many presentations. Before also she has presented at Vashi Dignity Foundation at the All India level about nature photography, and at Indian Women Scientists Association about landscapes, and also presented at Photo Circle Society. So we are all waiting for Shushma ji, and from Vashi Dignity Foundation Center, मोनिका पाठक अपने विचार सुषमा जी के बारे में और उनका धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए बोलती हैं, आज की शाम सुषमा जी के नाम। सुषमा जी अपने कैमरे में सारी दुनिया को कैद करने की प्रतिभा रखती हैं। उनकी तारीफ में मोनिका जी कहती हैं, हमारी बीटी फाउंडेशन नवी मुंबई की मेंबर, कुदरत के ये सारे नजारे हैं बहुत प्यारे, अपने हुनर से आपने निर्जीव पक्षी में जैसे प्राण भर डाले, करा दी सैर दुनिया की यूं ही घर बैठ कर सबको, मन भी हर्षाया
मन भी हर्षाया और आनंद भी आया। करते हैं अभिनंदन आपका, आपके हैं आभारी सदा। करते हैं अभिनंदन आपका, आपके हैं आभारी सदा। सम्मान के काबिल आपकी है कलाकारी। थैंक यू मोनिका जी, ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो सुषमा जी, आपकी तारीफ में मैं ये प्लेटफॉर्म आपको प्रेजेंट करती हूँ, एंड प्लीज कैरी ऑन। Thank you, Tripta and Monica ji, for such a nice introduction. Hello, friends. Good evening. Namaste. Vadakkam. Sat Shri Akal. Salam Alaikum to everyone. I am really feeling very happy and privileged to be here with my dignity friends from all over India. I wholeheartedly thank Dignity Foundation for giving me this golden opportunity to share my photographs and art design created using the droplet photography. I also thank Dr. Sheelu Srinivasan, the president of Dignity Foundation, and Mr. Nand Kumar Patil, the coordinator of Vashi Dignity Center. Droplet photography is a photography of a splash of water. Splash is formed by the collision of the two drops or more drops. It is also known as splash art. अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. Now, can you see my screen? Nandu ji, can you Yes, see my yes, screen? yes, we can see. Yeah. Yes. Okay. Yeah, we can see. Yes. So this We is see the the dance. droplet photography, and very mesmerizing and beautiful patterns are formed. I will also share some bird photographs in this platform. Because my passion is nature photography, so I will also share some bird photograph here. In pandemic periods, we are all confined to our home. So I learned a new genre of photography, which is known as droplet photography. इसमें the main advantage of droplet photography is that you can do it in the comfort of your home. तो इस सबसे पहले मैं गणेश जी को प्रणाम करती हूँ. ये मैंने ड्रॉपलेट फोटोग्राफी से बनाया है. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डिजाइन्स हैं, I viewed these droplets as dancing drops. मतलब ये dancing drop मैंने इनका नाम इसलिए रखा है कि मुझे ये लग रहा है कि ये सब ड्रॉप्स डांस कर रही हैं, कभी अकेले, कभी साथ में, कभी ग्रुप में, और हर एक ड्रॉप अपनी मस्ती में डांस कर रही है. शांता सुखाय. शांता सुखाय का मतलब अपने मन की खुशी के लिए. ये वर्ड साधु संतों के लिए यूज होता है कि जिनको किसी भी मनी का, फेम का और अवार्ड का लालच नहीं है. शांता सुखाय. एक अकबर के जमाने में एक महान कवि थे, कुम्भन दास. अकबर ने उन्हें बुलाया कि तुम हमारे दरबार में गाओ. तो उन्होंने कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम. संतन को फतेहपुर सीकरी से क्या काम, मेरे तो गिरधर गोपाल बाकी सब बेकाम. तो ये स्वांता सुखाय का मतलब ये नहीं है अपनी खुशी के लिए, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए. ये सभी बूंदें
every drop is narrating its own story. Every drop is dancing unique step. जिस तरह से, और हर पिक्चर जो है वो यूनिक है, जिस तरह से कि पूरे दुनिया में दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक से नहीं होते, दो लोगों के फेस एक से नहीं होते, उसी तरह से ये दो डिजाइन भी कभी एक से नहीं होते पूरे वर्ल्ड में। चाहे जिस फोटोग्राफर ने उनको क्रिएट किया है वो भी अगर दोबारा बनाना चाहेगा तो वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बन रहे हैं, स्वांतः सुखाय बन रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मशरूम बनाओ तो नहीं बनेगा, उनका जो मर्जी होगी वो बनेंगी। ये I have interpreted and given title to every design according to my own imagination, own interpretation, own experience. But any other viewer can give the title according to his own interpretation and his own imagination. मुझे एक कविता मैंने कभी पढ़ी थी, जो कि हिंदी के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है, और उन बूंदों को देख के मुझे वो कविता याद आ रही है। जो निकलकर बादलों की गोद से कि अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं क्यों बढ़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। यहाँ पर एक सुंदर, एक कैमरे का शटर था खुला, वो उसी के सामने गिरी, मेस्मराइजिंग डिजाइन बनी। तो ये जो आप डिजाइन्स देख रहे हैं, ये मेस्मराइजिंग डिजाइन्स सिर्फ ड्रॉप्स के कोलिजन से बने हैं। गर्ल प्लेइंग गिटार, ये मैंने आपको बताया कि टाइटल मैंने अपने इमेजिनेशन से दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ बूंदों के यूनिक डिजाइन है। और डिफरेंट डिजाइन मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये सब वाटर के ड्रॉप्स के स्प्लैश से बने हैं। 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, या कभी कभी हम वाटर ड्रॉप का साइज बहुत बढ़ा देते हैं, तो रैंडमली हमारे पास डिजाइन्स बन जाते हैं। और जनरली ये डिजाइन्स होते हैं अम्ब्रेला, मशरूम, ह्यूमन फिगर, साइकेडेलिक आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। Many designs are formed by this droplet photography. The jewelry box, this butterfly, डॉल्फिन प्लेइंग। पहले मैं आपको थोड़ी सी डिजाइन दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे जो टेक्निकल किस तरह से हम इनको क्रिएट करते हैं। Dolphin playing with this I have named this as a meditation. Then 3 dancers. ये गर्ल इन वेल, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर डिजाइन बनते जा रहे हैं, जो कि सिर्फ ड्रॉप से बने हैं। गोरी का घूंघट, इसको मैंने नाम दिया है गोरी का घूंघट। नाउ आई विल डिस्कस कि ये हम किस तरह से बनाते हैं। इनको बनाने के लिए हमें एक DSLR कैमरा चाहिए और लेंस
प्राइम लेंस 50 mm या कोई भी ऑर्डिनरी लेंस, एनी लेंस विल डू। और फ्लैश लाइट बहुत जरूरी है, फ्लैश लाइट चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए और टेबल और ड्रॉपर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज करते हैं, ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 ड्रॉपर्स हैं जिसमें कि हमने पानी में कलर घोल के भर दिया है, एक में लाल, एक में नीला, एक में पीला, और पीछे बैकग्राउंड में एक पेपर रखा है और 2 फ्लैश हैं साइड में, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉपर किट आती है जो कि कंट्रोल यूनिट होती है, इसको कि हम कंट्रोल करते हैं। इसको हम कंट्रोल करते हैं एक एंड्रॉयड की ऐप से, एंड्रॉयड की ऐप होती है इसके साथ ही आती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है ड्रॉप रोबो। तो आप 3 कलर से या 2 कलर से या 1 कलर से, जैसे पिछले पिक्चर में मैंने 3 कलर यूज किए हैं, इस पिक्चर में सिर्फ 2 कलर यूज किए, रेड और ग्रीन, और बैकग्राउंड के लिए जो कलर है वो ऑरेंज कलर है। और ट्राइपॉड पे हमारा कैमरा रखा है और 2 फ्लैश लाइट है, और स्टैंड में दोनों ड्रॉपर रखे हुए हैं जिनपे की लाल और हरा कलर है। आप 1 ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं, 1 से भी डिजाइन बना सकते हैं, 2 से या 3 से, मैक्सिमम 3 ड्रॉपर से 3 कलर, एक ही डिजाइन में हम 3 कलर यूज कर सकते हैं। तो ये आपका पिक्चर है जिसमें कि मैंने आपको दिखाया है। ये जो ऑरेंज कलर है ये बैकग्राउंड कलर के लिए है, तो आपको फोरग्राउंड में जिस कलर की पिक्चर बनानी है और बैकग्राउंड कैसे रखना है वो उस कलर का A3 साइज का पेपर आप वहां पे रख देते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का जो शीट है दिख रहा है ये A3 साइज का पेपर है, और मैं ये चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर आए। मैंने इतने सारे ऑरेंज कलर, इतने सारे डिफरेंट कलर्स के A3 साइज के शीट खरीद लिए, जिससे कि जब भी हमें जिस कलर के बैकग्राउंड की जरूरत पड़े हम उसको यूज कर सकें। तो ये मैंने शो करने के लिए कि कौन कौन से बैकग्राउंड कलर मैंने यूज किए हैं उसके लिए है ये। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉपर है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली ड्रॉपर को हम कंट्रोल करते हैं, ड्रॉपर को ड्रॉप कब गिरानी है, और जो कंट्रोल यूनिट है वो 3 काम एक साथ करती है। वो क्या करती है कि ड्रॉप को गिराती है, कैमरे का शटर रिलीज करती है और फ्लैश को फायर करती है, क्योंकि हमें तीनों काम एक साथ करने हैं। शटर को रिलीज करना है कैमरे की, जब ड्रॉप गिरेगी उसी समय कैमरे का शटर रिलीज करना है, उसी समय फ्लैश को फायर करना है और ड्रॉप को गिराना है। तो ये तीनों काम हम मैनुअली करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स है इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट की हेल्प से, कंट्रोल यूनिट का कनेक्शन कैमरे से और फ्लैश लाइट से कर दिया जाता है, तो तीनों चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, ड्रॉप भी, कैमरा भी और फ्लैश लाइट भी, तीनों चीजें कंट्रोल होती है। तो जब ड्रॉपर से ड्रॉप गिरती है तो ये 5 स्टेजेस में, उसके 5 स्टेजेस होती हैं। पहले ड्रॉप गिरी, फिर क्राउन बनता है, फिर क्रेटर, फिर जेट और फिर कोलिजन। सबसे क्राउन इज फॉर्म्ड व्हेन द ड्रॉप जस्ट हिट्स द वाटर इन द बेस ट्रे। ऊपर ड्रॉपर रखा हुआ है और नीचे एक बेस ट्रे रखी है, उसमें जैसे ही वो पानी गिरता है, ड्रॉप गिरती है, क्राउन बनता है। क्राउन के बाद क्रेटर इज फॉर्म्ड व्हेन द क्राउन सेटल डाउन इन द वाटर इन द बेस ट्रे। तो एक क्रेटर इज फॉर्म्ड। आफ्टर क्रेटर के बाद थर्ड स्टेज है जेट इज फॉर्म्ड। आफ्टर द ड्रॉप बाउंस बैक अबव द वाटर, ए वाटर पिलर इज फॉर्म्ड। एक पानी का पिलर सा बन जाता है, और ये वर्थिंगटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस ऑफ स्प्लैश ऑफ वाटर बुक लिखी है। सबसे पहले इन्होंने ही ये स्टडी किया था, साइंस ऑफ स्प्लैश ऑफ वाटर, इसलिए इनके ऑनर में ये वर्थिंगटन जेट कहलाता है। तो ये वर्थिंगटन जेट बनता है, सिंपली वी कैन से जेट बन गया। जेट बनने के बाद हमारे पास जब हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के जेट बनते हैं। होते सब जेट ही है, वाटर पिलर ही है, लेकिन कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोल है, तो डिफरेंट कलर के वाटर पिलर बन रहे हैं। जो वाटर पिलर बन रहे हैं या जेट बन रहा है उसकी विस्कोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, उसमें मिल्क मिला के, या फिर हम उसमें कभी जेंथन गम एक पाउडर होता है जिससे कि उसको घोलने से वो गाढ़ा हो जाता है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, जैसे पानी फ्लो हो जाता है, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो फ्लो नहीं हो पाती है, बहुत धीरे धीरे फ्लो होती है। तो हम
विस्कोसिटी डिफरेंट बनाने से उसका जेट का जो साइज है और शेप अलग अलग हो जाती है। तो मिक्सचर शुगर मिला दें या दूध मिला दें या क्रीम मिला दें, उससे हमारी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है। जब हमारा ये जेट बना, उसके ऊपर जब दूसरी ड्रॉप गिरेगी तो कोलिजन होगा, एंड ऑल द मैजिक लाइज हियर। कोलिजन में ही सारा मैजिक लाई करता है। ये जेट के टॉप के ऊपर एक दूसरी ड्रॉप गिरी और ये स्प्लैश हुआ, तो ये मशरूम की फिगर बन गई या उसकी फिगर बन गई। ये हमारी जो आप देख रहे हैं फिगर, ये मशरूम की फिगर है और अम्ब्रेला की फिगर है, और डिफरेंट फिगर्स बनती जाती हैं, और ऑल द मैजिक लाइज हियर। जब हम एक बार कोलिजन हुआ तो एक स्प्लैश हुआ और एक खूबसूरत डिजाइन बना। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जेट उस कोलिजन से रुकता नहीं है और उसको रोक ऊपर चला जाता है। उसी समय अगर हम एक तीसरी ड्रॉप को गिरा दें तो और भी सुंदर पैटर्न बनता है और भी सुंदर स्प्लैश होता है, और उस पैटर्न की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोलिजन। और हमारा ट्रिपल कोलिजन जब होता है, जब एक और ड्रॉप हम गिरा देते हैं तो उसको उससे स्प्लैश होता है, उससे कोलिजन हो जाता है। ये जो है कोलिजन के एग्जाम्पल है। कोलिजन हो रहा है, ग्रीन कलर का हमने रखा। तो ये जो कोलिजन है, हम इसको मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे ह्यूमन लाइफ में प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के बाद, उनको अपने हार्ड वर्क से, हिम्मत से प्रॉब्लम को जीतने के बाद आपका व्यक्तित्व और ज्यादा निखर जाता है, सम्माननीय बन जाता है। उसी तरह से ये ड्रॉप डबल कोलिजन या ट्रिपल कोलिजन करने के बाद जो पैटर्न बनते हैं वो और भी सुंदर बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से ये बन रहे हैं। ये जो पिक्चर है, ये ट्रिपल कोलिजन का एग्जांपल है। ये लाल रंग का जेट बना, उसमें एक कोलिजन हुआ, एक ही कलर से हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ये फास्ट स्पीड फोटोग्राफी है। तो इसमें जो वाटर का स्प्लैश होता है वो 1 सेकंड के 10,000 में फ्रैक्शन के बराबर टाइम के लिए होता है। उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसको फ्लैश और कैमरा कैप्चर कर लेता है। तो ये ट्रिपल कोलिजन का एग्जांपल है, और जितना डबल या ट्रिपल कोलिजन में हमारे डिजाइन और भी सुंदर बनते जाते हैं। मैं आपको कुछ और डिजाइन दिखाऊंगी जो कि मैंने बनाए हैं। ये वाला डिजाइन है, ये दूध से बनाया है। पानी के बदले मैंने मिल्क ले लिया है, पानी के बदले मिल्क को यूज किया है, तो ये मिल्क से बन रहा है। इन डिजाइन्स को बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से मैं 5 या 6 टेक्निक के नाम बताऊंगी आपको। लो कैमरा एंगल शॉट। लो कैमरा एंगल शॉट में क्या होता है, जब हम जिस लेवल पर पानी का कोलिजन हो रहा है, जेट बन रहा है, जेट की टॉप पे दूसरी बूंद का कोलिजन हो रहा है, कैमरे को उस लेवल से नीचे रखते हैं तो जो पिक्चर हम आती है वो लो कैमरा एंगल शॉट कहलाती है। अगर हम उस लेवल से ऊपर रखें तो वो हाई कैमरा एंगल शॉट होता है। तो हम डिफरेंट टेक्निक्स हैं। थर्ड टेक्निक है डबल एंड ट्रिपल कोलिजन। डबल कोलिजन मतलब एक बार ड्रॉप कोलिजन नहीं हुआ और दूसरी ड्रॉप वो जेट उसको चीर के आगे बढ़ गया और तीसरी ड्रॉप से फिर कोलिजन हुआ, तो वो ट्रिपल कोलिजन है। ये एग्जांपल ट्रिपल कोलिजन का है। उसके बाद है कोलिजन इन वाइन ग्लास। तो ये मैंने उसको टाइटल दिया है 5 फ्रेंड्स ऑन पिकनिक। जो 5 फ्रेंड्स हैं वो पिकनिक पे जब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो हर एक जना अपना ड्रिंक लेके एंजॉय कर रहा है। 5 फ्रेंड्स ऑन पिकनिक। देन नेक्स्ट टेक्निक है रिफ्लेक्शन टेक्निक। रिफ्लेक्शन टेक्निक में हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, हम एक ट्रे में पानी भरते हैं और कैमरे को लो एंगल पे रखना पड़ता है। तो ये मैंने 3 फ्रेंड्स ऑन द लेक साइड, तो रिफ्लेक्शन लेक के किनारे आ रहा है और तीन फ्रेंड्स उसको एंजॉय कर रहे हैं। यस, कुछ कह रहे हैं आप लोग? ये भी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन टेक्निक। तो इसमें जब हम हाँ, saying something? Superb. We would like to know how this reflection technique is achieved. Do you place a mirror beneath the dish No. containing the liquid? We put a long tray,
मैं आपको वो पिक्चर दोबारा दिखाऊंगी जो मैंने अपडेटस दिया था। उसमें लॉन्ग ट्रे रखते हैं जो कि 2.5 फुट या 3 फुट की है और उसकी चौड़ाई 1.5 फुट है और लंबाई 3 फुट है। तो लो एंगल पे कैमरा रखते हैं तो उस पानी में रिफ्लेक्शन आता है। अच्छा, ट्रे में पानी भर दिया, उस ट्रे में पानी भरने के बाद ही ट्रे में कैमरे को लो एंगल पे रखा है तो रिफ्लेक्शन आता है। और वो रिफ्लेक्शन इसलिए आता है कि हम जब बारिश के समय में सड़क पे चलते हैं, सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग का but रिफ्लेक्शन। low angle means is it level with the height of the liquid or what? लेवल ऑफ वाटर, ट्रे में जिस लेवल पे वाटर है उसके लेवल पे उसको कैमरे को रखते हैं। अच्छा, और ये नेक्स्ट टेक्निक है रिफ्रैक्शन टेक्निक। रिफ्रैक्शन टेक्निक में क्या, हमारी जो पानी की बूंदें हैं वो एक लेंस की तरह काम करती हैं। तो हमने अगर अपने जहां बैकग्राउंड पेपर रखा है वहां पर हमने पिक्चर रख दी एक बच्चे की, ये बच्चा है मेरा ग्रैंडसन है और राइट वाले में मैं हूँ, तो हमने पिक्चर रख दी तो वो पिक्चर उस ड्रॉप में बन रही है। तो ये रिफ्रैक्शन टेक्निक है, ड्रॉप के अंदर वो पिक्चर बन रही है जो कि हमने पीछे बैकग्राउंड में रख दी है। तो ये अब आपको मैं कुछ और पिक्चर दिखाऊंगी जो कि मैंने ड्रॉपलेट टेक्निक से बनाई है। इसमें दो, एक में लाल, 2 ड्रॉपर यूज किए हैं, एक में लाल रंग रखा है और एक में हरा रंग रखा है, ये बन रही है। इसमें भी आपने बैकग्राउंड में रेड कलर रखा है लेफ्ट वाली में और राइट में बैकग्राउंड में नेवी ब्लू कलर है और ड्रॉपर के अंदर येलो और ग्रीन लेफ्ट में और राइट में ब्लू और रेड। Madam, what is the hello? हेलो, What is the material on which you do droplet? Like canvas painting? it is sir, it is not a painting, it is photograph of a splash of water. How do you do that? I mean, हाँ, तो ड्रॉप, वो ड्रॉप only water droplets, no other material? नो अदर मटेरियल, नथिंग। मतलब यू कांट बिलीव कि ये वाटर ड्रॉप से ही बनी है। पर वाटर ड्रॉप का जो कोलिजन हो रहा है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं कैमरे में एक डार्क रूम में। Something very nice, lovely. कैमरे को डार्क रूम में रखा और जब वाटर ड्रॉप्स, जैसे ये वाला नेक्स्ट पिक्चर पोल डांसर देखिए, जिसमें 2 ड्रॉपर यूज किए, एक ड्रॉपर में ग्रीन कलर भरा, एक में रेड कलर भरा और रेड कलर का साइज हमने एक्स्ट्रा कर दिया ज्यादा। तो ये जो चिरची गिर गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी पैटर्न इज यूनिक। हम दोबारा इसको बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, लेकिन ये हमने इसको इमेजिनेशन से इसको नाम दिया, टाइटल दिया पोल डांसर। तो ये जो स्प्लैश हुआ वाटर का, ये हमने कैप्चर कर लिया। उसी समय फ्लैश को ऑन किया तो डार्क रूम में जब फ्लैश ऑन होगी तो जो स्प्लैश हो रहा है वही कैप्चर होगा। तो ये वाटर ड्रॉप्स हैं जिनका कोलिजन हो रहा है। ये देखिए वाटर ड्रॉप्स हैं, ब्लू, बैकग्राउंड इज नेवी ब्लू एंड कलर इन द ट्यूब इज लाइट ब्लू एंड रेड। तो 2 ड्रॉपर यूज किए हैं, एक ड्रॉपर में से लाइट ब्लू रखा है, बैकग्राउंड में नेवी ब्लू रखा है। आपको बैकग्राउंड कलर के लिए पेपर्स आपको दिखाए थे, अभी बहुत सारे कलर यूज किए हैं। तो जब जैसे हमें कलर थ्योरी मैंने स्टडी करी, कौन से फोरग्राउंड में कौन सा बैकग्राउंड कलर अच्छा लगेगा, उसी हिसाब से जनरली कोशिश करिए रखने की। ये भी मदर एंड चाइल्ड, ये सब ड्रॉप से ही बने, इसमें कुछ मटेरियल यूज किया है, ब्रश वगैरह कुछ नहीं है। इट इज ओनली फोटोग्राफ ऑफ स्प्लैश ऑफ वाटर स्प्लैश हो रहा है। ये फोटोग्राफ है, इसमें मिल्क, वाटर के बदले मिल्क यूज किया है। तो मिल्क से ये हमारा बैकग्राउंड पेपर वाइट ब्लैक रखा है, तो ये डांसिंग फिगर बन गई है। ये दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ ग्रुप डांस ऑफ बैलरीना। ये मैंने फोटोशॉप से बनाया, इसको मैंने फोटोशॉप से बनाया क्योंकि मैंने सोचा कि इसको एक ग्रुप डांस भी हमें शो करना है। दिस इज ए ग्रुप डांस। Is it possible to achieve the same effect if you have a constant floodlight, but the shutter speed is 1/10,000? Shutter speed cannot be always, shutter speed you cannot increase by 1/300 because shutter is a mechanical Okay. मिरर, DSLR मतलब मिरर उसमें होता है, तो वो मैकेनिकल काम करने में 1/300 टाइम लगता है, 1/300 सेकेंड। तो ओनली by minimizing the shutter speed you can't capture this. For capturing this you have to use the flashlight. तो flashlight हम देखिए इसको ऐसे करते हैं कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और कैमरे को हमने फुल रख दिया,
बल्ब मोड में, मतलब कैमरे के सामने कुछ नहीं है। जब वो बूंद गिरेगी उस समय फ्लैश लाइट को ऑन कर देंगे। वो हमने आपको बताया कंट्रोल यूनिट से करते हैं, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। कंट्रोल यूनिट हमारी इलेक्ट्रॉनिक है, वो सिंक्रोनाइज होता है। तो जब बूंद गिरती है उसी समय वो उसको कैप्चर कर लेता है, क्योंकि लाइट है तो उसको कैप्चर करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। दिस इज a group dance and we have used 2 colors, yellow and pink. This is another, right side में हमने इसको इंटरप्रेट किया है, it is a tree, पौधा है, सब फल लगे हुए हैं। Excuse me, madam. Hello. Yes, Is it possible to demonstrate? I mean, because some demonstration, how you do it. You are showing the painting, no doubt, very nice. But something, how you start and some demonstration of one anything. I will tell you after this finish question Okay. answer. Okay, okay, thank Okay. you. So this is another design, and I have used in the left I have used green color in the tube and red color. तो ग्रीन जब हुआ उसके ऊपर रेड कलर की ड्रॉप गिरी तो ये स्प्लैश बन गया, और ये बर्ड की तरह लग रहा है, जैसे रोज की बर्ड हो। देन दिस इज फादर विद द किड्स, ये भी मैंने बनाया है। ये अपना, मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम टाइटल अपने इमेजिनेशन से, अपने इंटरप्रिटेशन से दे रहे हैं। टाइटल कोई पिक्चर हम बना नहीं रहे हैं, ये अपने आप बन रही है, ड्रॉप्स के स्प्लैश से बन रही है। हम उसको खाली एक कैमरे में कैद कर रहे हैं, उस स्प्लैश को कैमरे में कैद कर रहे हैं। कैमरे में उसको मोशन को, इसको बोलते हैं मोशन को फ्रीज करना, उसको हम फ्रीज कर रहे हैं। और जो फ्लैश लाइट है वो 1/10,000 सेकंड के लिए खाली ऑन होती है, उसके बाद वो ऑफ हो जाती है। तो 1/10,000 में जो भी वहां पर हो रहा है वो कैमरे में पिक्चर आ गई उसकी। 2 फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। ड्रॉप्स हमारी कभी जो नीचे ग्लास रखा है उससे बाहर गिर जाती है, कभी तिरछी हो जाती है, और कभी क्या होता है कि सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती, मतलब जो जेट है उसके ऊपर गिरनी चाहिए दूसरी ड्रॉप, तो कभी लेफ्ट या राइट में गिर जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पानी है वो स्पिल हो जाता है और रूम में फैल जाता है, क्योंकि पानी लगातार हम बूंदे गिरा रहे हैं और नीचे जो ट्रे रखी है ओवरफ्लो हो गई तो कमरे में फैल जाता है। काफी बार ऐसा हुआ कि कमरे में पानी फैल गया, फिर मुझे साफ करना पड़ा। तो दिस इज विंड मिल, एंड this is windmill, but you can interpret it as a flower also. It's a windmill, but anyone say it is a flower. So this is a family of mother, father and kid. तो इसमें बैकग्राउंड कलर में मैंने नेवी ब्लू कलर यूज किया है, और फोरग्राउंड में जो ट्यूब में कलर भरे थे उसमें लाइट ब्लू और पर्पल, ये मैंने दिया है। इट इज डिफरेंट ह्यूज ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में कभी खुशी है, कभी गम है, तो ये मैंने डिफरेंट ह्यूज ऑफ लाइफ को शो किया है। कभी हम उत्साहित हैं, कभी दुखी हैं, कभी हमारे गाना गा रहे हैं, पिकनिक कर रहे थे। पिंक कलर, 2 कलर में दिखे ह्यूज ऑफ लाइफ। 2 स्नेल्स इन कन्वर्सेशन, इसमें मैंने बनाया है। बैकग्राउंड कलर लिया है मैंने लाइट ब्लू, और फोरग्राउंड में डार्क ब्लू कलर। तो ये जो कलर्स थ्योरी है, ये मैंने इसको बनाने के लिए कौन से कलर के साथ कौन सा कलर बेस्ट सूट करेगा, वो मैंने बड़े जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनकी फेमस पेंटिंग को स्टडी किया थोड़ा सा, और ये देखा कि उनकी जो फेमस पेंटिंग है वो, उनके बहुत से रीजन है, लेकिन उसमें एक रीजन ये भी है कि कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर के कॉम्बिनेशन क्या है। तो वो मैंने थोड़ा कोशिश करी है वो कलर थ्योरी को स्टडी करके कि कौन सा कलर बैकग्राउंड के साथ फोरग्राउंड में कौन सा कलर मोस्ट प्लीजिंग इफेक्ट देगा, मोस्ट एस्थेटिकली ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ब्लैक रख लेते हैं, क्योंकि ब्लैक हमेशा ही अच्छा लगता है बैकग्राउंड में। ये बर्ड फीडिंग, एंड these are all water splash, and I have used a small amount of Photoshop also. So you can see cats and dogs,
ये मैंने इसको दिया है टाइटल, द some meeting is going on and the group leader is tossing some idea. Actually this is the crown जो मैंने आपको बताया था, crown बनता है, crown है ये, ऊपर से एक drop और गिर रही है. तो I have given the title tossing the idea in a group meeting, group discussion. This is crocodile on the left side. And jellyfish. I have used Photoshop in the left side. Not right side is original photograph, but left side I have combined 4 different pictures. मतलब 4 ड्रॉप, ये एलियन है. एंड दिस इज द ट्रिपल कोलिजन एग्जाम्पल. ट्रिपल कोलिजन में पहले हमारा जो जेट बना ब्लू कलर का, उसके बाद हमने एक बूंद गिराई जो कि ब्लू कलर की थी, तो एक सर्किल बन गया. उसके बाद एक और बूंद गिराई जो कि रेड कलर की थी, तो ये बन गया हमारा. दिस इज अनदर डिजाइन. जब हम इनको करते तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि काफी बार डिजाइन जो है वो नहीं बनते हैं, क्योंकि अब कभी आपका जो फ्लैश का टाइमिंग्स है वो आपका अप्रोप्रिएटली सेट नहीं है. तो डिजाइन तो बन रहा है लेकिन आप उसको कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो स्प्लैश होता है जितनी देर में हमारी आई ब्लिंक होती है उससे भी कम समय में होता है. तो ब्लिंकिंग ऑफ आई इज लार्ज, 1/10,000 से लेके 1/15,000 सेकंड के फ्रैक्शन में ये हो रहा है. तो हमने अगर फ्लैश का टाइम उसी समय, जिस समय कोलिजन हो रहा है उसी समय फ्लैश को ऑन करना है. अगर आपने उससे पहले या उसके बाद फ्लैश को ऑन किया तो आपका पिक्चर कुछ भी नहीं आएगी. तो कभी कभी हमें लगता है कि पिक्चर क्यों नहीं आ रही है, देन वी हैव टू अगेन सेट द फ्लैश का टाइमिंग्स एंड ड्रॉप. और हमेशा कैमरा जो है वो फ्लैश ऑन करने के 300 मिलीसेकंड बाद हम ऑन करते हैं, क्योंकि कैमरा में जो मोशन है वो मैकेनिकल है. फ्लैश जो है वो बिल्कुल लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑन किया इमीडिएटली फ्लैश ऑन हो गई. लेकिन कैमरे में थोड़ी सी मैकेनिकल मोशन है तो 300 मिलीसेकंड लगते हैं. तो हमें कैमरे को 300 मिलीसेकंड वो कंसीडर करना पड़ता है, तब हमारा कैमरा फ्लैश और ड्रॉप तीनों सिंक्रोनाइज करने पड़ते हैं. मतलब ड्रॉप गिरी उसी समय फ्लैश ऑन किया, जब स्प्लैश हुआ और उस समय कैमरे को ऑन किया, तीनों काम सिंक्रोनाइज हो रहे हैं तभी हमारा होता है. तो काफी बार हम करीब करीब 100 पिक्चर्स लेते हैं, तो उसमें 3 या 4 पिक्चर जो है वो अच्छी आती है, जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है, और बाकी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं. ये आपका ऐसे है, एक एग रखा है, बर्ड का एग है. तो ये मैंने बनाई है, ब्लू कलर, येलो कलर और रेड कलर, 3 कलर इसमें यूज किए हैं. एंड दिस इज द वाटर जग. तो बैकग्राउंड में येलो कलर लिया है और फोरग्राउंड में ब्लू और ग्रीन. तो ये वाटर जग है. अब इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये मतलब किसी भी चीज का शरबत का जग है या बियर का जग है, इसमें बियर रखी है या वाइन रखी है. इट इज अ जग ओनली. And this is the, I've not given any title. You can give any title, whatever you think. And कृष्ण जी, तो जब कृष्ण जी की छवि मन में आती है तो कृष्ण जी वृंदावन में कदम की छांव में बांसुरी बजाते हुए, गऊ चराते हुए, तो जब वो बांसुरी बजाते थे तो सारे ग्वाल बाल और पशु पक्षी उनकी मंत्र मुग्ध होके सुनते थे बांसुरी की धुन. तो ये मैंने गाय और बछड़ी को एक गार्डन में जाके फोटो लिया और इसको सुपर इम्पोज किया है. ड्रॉपलेट फोटोग्राफी के, कृष्ण जी ड्रॉपलेट फोटोग्राफी से है, लेकिन गाय और बछड़ा एक गार्डन में है. नाउ फाइनली आई वांट टू थैंक माय टीचर मिस्टर दीप भाटिया. उन्होंने ही मुझे सिखाया है ये सब. और ये जो पिक्चर है ये मिस्टर दीप भाटिया की है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. Thanks a lot. Thanks a lot. Very nice. मैडम, सुषमा मैडम, हाँ जी. मैं रमनी अयर बोल रहा हूँ वाशी से. हाँ, Is it possible to repeat a particular drop yeah. model? या पॉसिबल. No. यू कैन कैसे उसका सेटिंग? ना नंबर ठीक है, but you are keeping the setting, everything noted, or it is programmed, or how is it possible to repeat? You get
You get the result and then name the picture. Then again sharing the picture. I will show you this. The picture just happens. It is not designed. No, that's why I said it can it be repeated? No. Each drop will be different. No, basic thing is whether you get what you want design or what it comes, you name it in a particular design. You get something and then you name it. That's all. Let us tell. हम उनको नहीं बोल सकते कि तुम क्या बनोगे, वो अपने आप बनती है जो उनको बनना होता है। हम उनको नहीं कह सकते कि अब आप ये बन जाइए। जो है ना कि स्वांता सुखाए है, वो स्वांता सुखाए मतलब अपनी मर्जी से बन रही है, हम उनको नहीं गाइड कर सकते। और एक बार जो डिजाइन बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा। थैंक यू। वो मैंने एग्जांपल दिया कि दुनिया में जैसे 2 फिंगरप्रिंट कभी एक से नहीं होते, 2 फेस कभी एक से नहीं होते, उसी तरह से ड्रॉपलेट डिजाइन में 2 डिजाइन कभी एक से नहीं होंगे इन द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द इंडिया, इन द होल वर्ल्ड। Okay, thank you. Now I will show you another photography of my bird photography. I want to share with this. Hello, Sushma. Hello. Hello. Now, can you show one photoshopping done on those pictures? Where have you done photoshopping in that? I have done the picture in the dancing doll. Dancing doll. Okay. डांसिंग, एक लड़की डांसिंग बनाई थी सुबह, दोबारा दिखाऊं आपको, डांसिंग बनाई थी ना शुरू में। Hello. Yes. Yes. It's a communal thing, Hindu-Muslim thing, and it's happened because of various other reasons. Okay, this one. Yeah. This to share my- तो इसमें Okay. मैंने फोटोशॉप सिर्फ हाथ लगाने में किया है, बाकी सब वैसे ही, क्योंकि हाथ नहीं बन रहे थे। Okay. Thank you very much. हाँ, Thank क्योंकि you. बाकी तो सब मतलब I have not done anything, तो वाटर स्प्लैश से बन रही है, बूंदें आ रही है ना, ये दूध यूज किया है और पिंक कलर यूज किया है, तो ये हाथ लगाए और फूल दो फोटोशॉप करे, उसके हाथ पे फूल दिया है ब्राइड के और उसके हाथ को वो किया है, इसी तरह से इसमें गिटार को रखा है बस, बाकी सब फोटोशॉप से ही जो ड्रॉप के कोलिजन से ही बन रहा है। Sushmaji, you continue with the birds photographs now. Now, okay. I will continue the bird photograph. The photo of Krishna with the cow and calf that you have done photoshopping? Love it. Krishna playing the flute. Yeah. हाँ, फ्लूट बनाई ना उनकी। Okay. हाँ, थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना फ्लूट नहीं बनेगी, बाकी तो जैसे ब्राइड में हाथ लगाए बस इतना किया, बाकी तो सब ठीक है। Thank you, Sushma ji. Sushma ji. Now I will show you my bird photography. ये जो बर्ड फोटोग्राफी है, ये सारी बर्ड्स मैंने मुंबई की बर्ड्स ली हैं, जो कि यहाँ पे मैंने वो फोटोग्राफ किया है, बॉम्बे की बर्ड्स। आपको आवाज आ रही है? Can you see the screen? Yeah. पिक्चर मैंने मिनी सिसोर और कागज बिहार की है। जब मैं सुबह वॉकिंग करने जाती हूँ तो वहां पे मैं सुबह सुबह ये सब पिक्चरें लेती हूँ।
माहौल है, इसको लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये पहाड़ी के ऊपर था, चट्टान के पीछे छुपा हुआ। बर्ड्स है, ये हमारे घर के पड़ोस की बर्ड्स है। मिनी सिचोर की बर्ड्स है। मिनी सिचोर मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मिनी सिचोर में इन्होंने क्या किया है, समुद्र के पानी को कवर करके लेक सी बना दिया, आर्टिफिशियल लेक, और उसके चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बना दिया है। तो वो जो है मिनी सिचोर है। ये मैं आपको कुछ पिक्चर जूम करके दिखाती हूँ, देखिए। इसको देखिए जूम करके, ये देखिए, ये पिक्चर ऐसी है। यू कैन सी द जूम। Yes, very clear. सनराइज के समय का सीन है, सागर बिहार का है। रिफ्लेक्शन, ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन। ये मिनी सिचोर है। मिनी सिचोर Can you see? Can you hear the music? Yes, yes. Okay. हाँ
अभी now you can't, we can't, पहले था. अच्छा अच्छा, अभी वो मैं दोबारा बंद करना पड़ा ना, तो अभी खत्म। अब ऐसे चलने दीजिए। फ्लाइट टेक ऑफ। ये सब पोज में मैंने चिड़िया ले ली है। कभी ये गुस्सा हो रही है, कभी वो उड़ने के लैंडिंग कर रही है, कभी वो टेक ऑफ कर रही है। मैं सुबह सुबह मिनी सीशोर चली जाती हूँ, वहाँ पे बैठ के वहाँ पे बर्ड्स की फोटोग्राफी करती रहती हूँ। Stepping up hostilities. Hundreds of artillery shells have exploded along the line of control, what's called the contact line between Ukrainian soldiers and Russia-backed separatists. Thousands of people have. ये भी मिनी सीशोर है, बम्बई हमारे वाशी का। वॉकिंग, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है ये जगह। फ्लोवर, अब शाम हो गई, अब सब बर्ड्स अपने घर जा रही हैं, तो शाम को सब घर जा रही हैं, इसलिए आपको भी घर नहीं दिख रही है। ये भी मिनी सीशोर के पास का ही सीन है। ये टीएस चाणक्य, ये फ्लेमिंगोज हैं जो घर जा रहे हैं अपने। थैंक यू वेरी मच। Now I want to show one video of 3 minutes. 3 minutes का एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। संग संग डोले जी, संग संग डोले। आप देख सकते हैं वीडियो। डोले जी, संग संग डोले। Can you see the video? अपनी अपनी बोले। Yes, yes. बोले अपनी अपनी बोले, ये बोले ये बोले। संग संग डोले जी, संग डोले। हम पंछी एक डाल के पूरब है फिर देने वाला, पूरब है फिर देने वाला, सारी दुनिया को जियाला, सारी दुनिया को जियाला। चलो बंधु उड़ कर जाए, द्वार गगन के खोले खोले खोले। संग संग डोले जी, संग संग डोले। संग संग डोले जी, संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, ये बोले ये बोले। संग संग डोले जी, संग संग डोले। हम पंछी एक डाल के उठ न सके जो अब तक सो के, पा न सके जो सब कुछ खो के, उठ न सके जो अब तक सो के, पा न सके जो सब कुछ खो के। उनके जीवन में संग संग डोले जी, संग संग डोले। संग संग डोले जी, संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, ये बोले ये बोले। संग संग डोले जी, संग डोले। हम पंछी एक डाल के पूरब है फिर
बनने Thank you. Thank you, Sushma ji. May I request Teresa to give a vote of thanks, please? Was that very simply marvelous? I want only one question. Yeah. Whether, this photography or drawing or which is going in the market on commercial basis selling, and whether these techniques are used in the cartoons taking cinema like that, where it is being used, this type of this droplets is very, very difficult. Taking photo of the birds and all, you require more time and more time in the dark room. Yeah, I think Raghu, let us have a vote of thanks, then we will continue with the, yeah, okay, yeah. Yeah, Teresa, please go ahead. Yeah, am I audible? Yes, yes. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of our coordinator, Mr. Nandakumar Patil and Vashi Chai Masti family, I wish to express our gratitude to Dr. Sheelu Srinivasan for inspiring and leading this unique organization. Our thanks also go out to Dr. Sujoy and the head office team for helping to organize these sessions, which enable us to showcase our talents, hobbies, and passions. Many thanks to the coordinators and members from all over India for being here this evening and for all the encouraging messages, interest, and queries shown during the presentation. And to Dr. Sushma Leri, our appreciation for this lovely presentation on photography. Your passion shone brightly when during the lockdown, when the lockdown restrictions were eased, and you went out religiously every morning with your camera. Through your lens, the mundane became exotic and exciting. In your droplet photography, not only are your images fantastic, the captions too are so apt. Once again, I thank one and all for being here today. Jai Hind. Nandu, Kasi here. Can I ask a question to Sushma? Yes, yes, why not? Yes, Sushma, I understand your studio for the flash photography. It should be a dark room? Yes, it should be a dark room. Okay. Then what is the shutter speed you keep on your SLR? I keep SLR on the bulb mode. Bulb mode means it is open, and when you take the photograph, after 1 minute it will goes off. Okay. It is in the control unit. Okay, the control is only by the flash. Yeah, yes. Control is only by the flash. By the electronic controller. Yeah. So This electronic controller I have bought by India's company of Pune, and total this instrument cost, total dropper is 10,000 and total stand is flash 25,000. Very good. I understand your passion for photography because this is the second session I am attending. The first one was also very impressive. Yeah. And, this particular new technique of splash photography, I am not. And you learned by reading the books or something? No. I learned attending an online course by Mr. Dev Bhatia. He is a teacher and take online classes of various fields like portrait photography, serial photography, still life photography, and this droplet photography. He's a teacher. It must be very impressive and a lot of patience you got.
to create these photographs? We organize online classes for one classes of 2 months. It's Oh, for 2 months, and for whole year we organize the different type of classes in portrait photography, still life photography, and different like modeling photography, etc. Food photography, very. droplet. And you said photoshopping also you have done after in some of the photos. Yeah. Correct? For Photoshop? Photoshop, I already knew because I am the computer person, so I need not to. मतलब अभी मुझे सीखने की जरूरत नहीं थी. I already knew Photoshop. Yeah. I saw that in the human forms, particularly the eyes, the guitar or the Krishna, they are all very. कृष्णा ने फोटोशॉप किया है क्योंकि दो पिक्चर को सुपर इम्पोज किया है. एक ड्रॉपलेट की पिक्चर है जिसमें कृष्ण जी बन रहे हैं और बैकग्राउंड की पिक्चर है जो मैंने एक गार्डन में ली है जिसमें गाय और बच्चे थे. गार्डन में जाके ले ली तो उनको बैकग्राउंड वाज आल्सो वेरी नाइस. हाँ, बैकग्राउंड इसलिए लिया क्योंकि कृष्ण जी की छवि के साथ अपने आप गाय और कदम का पेड़ वो आता ही है बांसुरी, तो वो मैंने इसीलिए उसको bird watching and study of bird. Bird watching. So I went to Alibag and different places. Very good. Please give a round of applause to Dr. Sushma. Thank you very much, Sushma. And thank you, Nandu, for giving. Please give a round of applause to Dr. Sushma. Thank you. Thank you everyone for joining in. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, Sushma ji. Wonderful. Awesome. Thank you, Tripta ji. Thank you, Triva ji, for welcome and the vote of thanks. Thank you. Thank you. Thank you. It was our pleasure. Thank you. Thank you. Thank you.